starting our topic. Yesterday we are on the topic इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का होता है. ओके, तो कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? यस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स डन. रजिस्टिविटी हो गई फिनिश. वेरिएबल रेजिस्टेंस कर चुके हैं. रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल डन. Yes. Okay, guys. Now, once again, we starting the lecture. We again cover the yesterday's part that we have studied yesterday. Okay. So, heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझेंगे. तो कल मैंने ये बताया था बच्चों कि जब भी आप किसी कंडक्टर से मटेरियल वायर से हीट फ्लो करते हैं, जब करंट फ्लो करेंगे, हीट क्यों फ्लो करेंगे, जब किसी कंडक्टिंग वायर को आप टर्मिनल में पोटेंशियल सेट करते हैं, व्हेन यू सेट द पोटेंशियल across the conducting wire, like this is plus, this is minus, so what happening there, positive potential would come here and negative would be here. Due to that, the electron is continuously flowing towards the positive terminal with very high speed. Yes. So during the flow of the high speed electrons, they may be strike with the another atoms of the same material. तो जब ये चलते हैं सो दे क्या होते हैं, टकराते हैं बहुत ज़ोर से टकराते हैं एक दूसरे से. इलेक्ट्रॉन्स में टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में टकराते हैं. सो ड्यू टू दैट स्ट्राइक, ड्यू टू दैट उनकी उस भिड़ंत के कारण बहुत सारी हीट निकलती है. एंड दिस एनर्जी आफ्टर द स्ट्राइक वुड बी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो गर्म हो जाता है आपका वायर. And this effect is called heating effect of current. Heating effect of current. समझ में आया बच्चों की नहीं आया? Yes, sir. Okay, so essentially what is going there? Due to the flow of current, the wire continuously heated up and heated up. The wire गर्म होता जाता है, लगातार गर्म होता जाता है जब तक करंट फ्लो करती है. So this is called heating effect of current. The process of heating up any electrical conductor due to the flow of current. किसी करंट के फ्लो की वजह से किसी वायर का, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का लगातार गर्म होना is called heating effect of current. Now question is how much energy is waste as a form of heat. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख देता हूँ. how much energy get wasted in the form of heat. हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है. सो गाइज वी नो व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क and here the energy dissipated in the form of, particularly the name of the energy is here heat energy. यहाँ पर जो एनर्जी वेस्ट होगी उसका नाम होगा हीट एनर्जी. सो बच्चों हीट एनर्जी हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे? यू ऑल नो व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी को वर्क बोलते हैं और हम जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. V इक्वल्स टू W बाई Q. सो W इक्वल्स टू Q इंटू V. सो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू Q बाई T. सो Q इक्वल्स टू IT. So your formula becomes W is equals to I into T into V. More accurately you can write this formula VIT. This work is wasted in the form of heat. So now the work taking the name of heat energy, this H equals to VIT. So guys write the first formula H equals to VIT. बोलो आज सबको क्लियर है कि नहीं है? The heat Yes, energy yes. dissipated H equals to VIT. अभी सबको क्लियर हुआ ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नोट कर लो फटाफट. W इक्वल्स टू Q, V इक्वल्स टू W बाई Q. W से बन गया QV. Done, Q sir. की जगह IT इंटू V, दैट इज इक्वल्स टू VIT. डन? Done, sir. Yes, sir. Okay guys, good. Now comes to the Ohm's law. What Ohm's law is stating? Ohm's law says that Ohm's law, what says the Ohm's law? Ohm's law says that V equals to RI. So just put guys here the value of V. So H equals to IR multiplied by, in the place of V we have put I into R and I into T are separate.
so it becomes finally I square RT. So guys, this is the another formula for the heat, right? Heat equals to I square RT. Note down, heat equals to I square RT. This is the formula of heat. Done, sir. ओके, ये हीट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी. वन मोर फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, H equals to VIT again. Now H equals to V, I is equals to V by R, V by R into T. So this becomes heat equals to V square upon RT. So this is the another formula. बच्चों नोट कर लो. Done, sir. Okay. Done, sir. Yes. Are you clear? Yes, sir. So what we have studied, power is called work upon time. यहाँ वर्क होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और पर्टिकुलरली हमारे पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी. तो मेनली जो हमें फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, वो है इक्वल्स टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम. अब हीट एनर्जी के तीन फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले हैं. बोलो आर्यन, पहला फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू VIT. और दूसरा फॉर्मूला H इक्वल टू I square into R into T. वेरी गुड. और तीसरा फॉर्मूला H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर V टी. square by R into T. चलिए, तो पहला फॉर्मूला लगते हैं, देखा हीट की जगह पहला फॉर्मूला लगते हैं वी आई टी अपॉन टी. बट टी से टी कैंसिल, पावर का पहला फॉर्मूला बनाइए पी इक्वल्स टू वी आई. दिस द फर्स्ट फॉर्मूला पावर. इलेक्ट्रिकल पावर का पहला फॉर्मूला पी इक्वल्स टू वी आई. समझ में आया? समझ में आया? प्रगति, प्रियांशी, बाकी सभी बच्चे? Yes. Yes, sir. दिव्या? Yes, so this is the first formula, power is equals to heat upon time, VIT upon T. Second Yes, sir. formula, power is equals to again rate of dissipation of heat. And what is the amount of heat here second time? I square RT. So guys, put the formula I square RT upon time. Time से time cancel. So next for the power P equal to I square R. Next formula P equal to I square R. लिखते जाओ बच्चों. Done? Done guys? Done, sir. Okay. Yes, sir. Now Done. come to the formula guys. Power is equals to again work upon time, or say energy upon time. What type of energy here? Heat energy upon time. And the formula you can write 1 by time, और heat का formula रख दो बच्चों. क्या होता है? V square upon into T. T से T हो गया cancel. And finally we have the formula for power, P equals to V square by R. So this is the third formula. Right now. Excuse me, sir. Yes beta. Sir, may you please explain the third formula? Yes, I am repeating the third formula. We have the formula power is the rate of dissipation of heat energy. So power is equals to heat energy upon time. And what we have the value of heat we are in the third part beta? V square upon RT. Yes or no? Yes, sir. Okay, so 1 by T I separate and put the value of heat as V square upon RT. So T हो गया cancel, और क्या बचेगा केवल आपके पास? V square by R. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. ओके, नोट कर लीजिए. Yes, sir. तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हीट के बन गए और तीन फॉर्मूले पावर के बन गए. तो पावर के तीनों फॉर्मूले मैं लाइन से लिख देता हूँ. पावर के तीन फॉर्मूले रेड कलर के पेन से मैं लिखूंगा. ओके, तो मैं पावर के तीन फॉर्मूले लिख रहा हूँ. एक फॉर्मूला मुझे क्या मिला? फॉर्मूला मुझे पहला मिला P इक्वल्स टू V इंटू आई. दूसरा फॉर्मूला मुझे मिला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. और तीसरा फॉर्मूला मुझे मिला P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. चलिए, तीनों नीचे हैं पावर के फॉर्मूले और ऊपर वाले बबल में ये है हीट के फॉर्मूले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फॉर्मूले. हाँ, अब जिस किसी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझसे एक बार, दो बार, 10 बार पूछ सकता है. चलिए बताइए कहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? एकदम क्लियर हो गया?
कंटिन्यू. So can you explain how heat is equals to V square upon R into T? Because I left at that time. Okay, once again I am explaining. P equal to V square upon R into T. Let's see. बच्चों आप लोगों ने लिख लिया, बाकी लोगों ने पूरा लिख लिया कि नहीं लिख पाए? Yes, sir. Done. ओके, वेरी गुड. Done, sir. ओके, चलिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए मैं सेकंड थर्ड फॉर्मूला आपने कहा है मेरे से. गति यू नो हीट इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, rate of flow of energy, okay, rate of consumption of energy. And what type of energy we are consuming here? We are consuming here heat energy. So particularly in the of work we can take here heat upon time. Okay, and just now we have studied that the formula of heat is V square upon R into T. So 1 by T को separate कर लो, और can you write like this? 1 by T multiply by heat, yes or no? Yes. Okay, now place the value of heat here. Value of the heat here is V square upon R into T. Guys, T to T cancel and we have the left at V square by R. So this is power. Now understood Priyanshi? Pragati? Clear? Yes, sir. Okay, so this is Yes. okay, ठीक है. सो ये हो गया हमारा पावर कंप्लीट. 3 फॉर्मूले आपको कभी नहीं भूलना बच्चों. एक तो हीट के फॉर्मूले H इक्वल्स टू वी आई टी, टाइम का डिवाइड करने पर पावर बन गया, पावर इक्वल्स टू वी आई. H टू आई स्क्वायर आर टी, और टाइम का डिवाइड कर गया तो पावर बन गया, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर. H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई, और टाइम का डिवाइड करने पर इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी वी स्क्वायर बाई आर. लीजिए प्रकृति. डन. शैल आई मूव हेट? Done, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay, so guys, our next topic is fuse, right? Fuse. Okay, maybe in your day-to-day life have you ever said that fuse उड़ गया? फ्यूज उड़ गया. ओके, सो फ्यूज के पंख तो लगे नहीं है, सो वो फ्लाई तो कर नहीं सकता है, सो इट कैन नॉट उड़ गया. ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड? एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली फ्यूज उड़ता नहीं है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है. फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है. क्यों हो जाता है? एक्सेसिव करंट की वजह से, ज्यादा करंट की वजह से. अगर सर्किट में ज्यादा करंट किसी पाथ पे, तो ज्यादा करंट की वजह से फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है. सर क्यों? ज्यादा करंट से क्या प्रॉब्लम है? गाइज यू नो हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर. अगर करंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हीट और जोर से बढ़ेगी. दैट्स वाई करंट बढ़ने से हीटिंग बढ़ती है, और हीटिंग बढ़ने से फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, और जब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आपका मेन लाइन है, और इस मेन लाइन में आपने एक फ्यूज़ लगा रखा है. ये फ्यूज़ ऐसा होता है, और इसके अंदर पतला सा एक वायर होता है ये, और ये वायर एक एलॉय का बना होता है. इस एलॉय का नाम मुझे कौन बताएगा? कोई जानता है इस एलॉय का नाम जिससे फ्यूज़ वायर बनता है? किसने पढ़ाई करी है रिफ्रेशर से? कौन बच्चा घर में पढ़ रहा है? बताओ भाई इस वायर का नाम. ये वायर किससे बनता है? नो, एल्यूमिनियम से नहीं बनता. ये वायर एक एलॉय से बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटन. उस एलॉय का नाम है कॉन्स्टेंटन. कॉन्स्टेंटन वायर का ये अंदर फ्यूज कशा होता है, इसके ये होता है. और इसके बाद ये सर्किट है. ओके, इसके बाद आपका टेलीविज़न है, और टेलीविज़न में आप जो भी देख रहे हैं, जो भी देखना हो. ओके, ये टेलीविज़न चल रहा है घर में आपके, ये टेलीविज़न रखा हुआ है. सडनली क्या है, टेलीविज़न की जो आपकी रेटिंग है, जो टेलीविज़न आपका करंट चाहता है सर्किट से, वो कितना चाहता है टेलीविज़न? मान लो टेलीविज़न आपका ऑपरेट होता है 10 एम्पियर पे, 10 एम्पियर पे, और 10 एम्पियर की करंट के लिए यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो भी 10 एम्पियर का है. ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ है. तो ये फ्यूज़ क्या बताता है? ये फ्यूज़ बताता है कि मैं 10 एम्पियर की करंट को अपने अंदर से जाने दूंगा.
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वायर मेरी 10 एम्पियर की करंट को फ्लो कर देगा। बट सडनली एक दिन लाइट आती है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यहाँ पर आने वाली करंट हो जाती है कितनी, 15 एम्पियर। अगर ये फ्यूज़ नहीं लगा होता तो ये करंट सीधे जा करके आपके टेलीविज़न को अटैक करती। फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर ये फ्यूज़ लगा है तो जैसे ये करंट इसके फ्यूज़ वायर के पास पहुंचेगी तो फ्यूज़ वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एक्सेसिव गर्म हो जाएगा, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो मेल्ट होकर के टूट जाएगा। मेल्ट होकर के ये जैसे बीच में था ना, लाइक दिस, ऐसे गया था ना, तो यहीं पर मेल्ट होकर के ये टूट जाएगा। जब ये टूट गया तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और आपके टीवी के अंदर से 15 एम्पियर की करंट नहीं जा पाएगी और आपका टीवी सेफ रहेगा। दैट्स वाई योर फ्यूज इज वर्क एज अ सेफ्टी डिवाइस। समझ में आया अच्छे से बच्चों आज?